स्टूडेंट्स अज अपना टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ते एग्जॉस्टिव इवेंट्स। पहला आप करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Mutually exclusive events if occurrence of one event excludes occurrence of other event. Two events A and B are mutually exclusive event if occurrence of one event excludes the occurrence of other event। यानी कि एक जे इवेंट होएगी तो दूजी नहीं होएगी। A इंटरसेक्शन B ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ फाई, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਆਏਗਾ 0। फाई ਸੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ 0। अगे है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स if मेन दी कंडीशन हैगी है A यूनियन B तुहाडा S होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। दो इवेंट एग्जॉस्टिव तां ही होणगियां जे उन्हां दी यूनियन करिए सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। मैं एग्जांपल्स नहीं एक्सप्लेन कीतियां, मैं हुण एग्जांपल भी एक्सप्लेन करदा। पहला इहदी करदा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दी एग्जांपल की होएगी, सपोज करो suppose we throw a die। example we throw a die देखिया होना। सेट ए हो गया ओड नंबर अपीयर कह लो, अपीयर कह लो। सेट बी हो गया ईवन नंबर अपीयर। हुण ओड नंबर डाइस कढ़ाना है 1 2 3 सॉरी 1 3 5। बी की होना 2 4 6। इन्हां दी इंटरसेक्शन 5 आएगी, यानी कि ए नंबर जे आपां वेखीए 1 3 5 होना। बी वेखीए ए सैट वेखीए बी होना 2 4 6। ए इंटरसेक्शन बी देखो 5 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ये इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का मतलब इन्होंने दोवां सैट की यूनियन सैंपल स्पेस होनी चाहिए है। ये यही एग्जाम्पल ले लेने हैं। वी थ्रो ए डाई। सैट ए मान लिया नंबर लैस दैन 4 अपीयर। नंबर लैस दैन 4 अक्कर या अपीयर कह लो, अक्कर कह लो या अपीयर कह लो, एक ही गल है। सैट बी मान लो नंबर ग्रेटर दैन 1 अपीयर। नंबर लैस दैन 4 सैट ए की बनेगा लैस दैन 4 का मतलब 1 2 3। सैट बी की बनता नंबर ग्रेटर दैन 1। थ्रो डाई किया ना, डाई दे विच डाई पता ही है तुहानूं, लुडो वाला गीटा वेखिया ही है तुसीं। नंबर ग्रेटर दैन 1 अपीयर। 1 तो वड्डा नंबर किहड़ा किहड़ा आ सकता है 2 3 4 5 6 आ सकदा। हुण एग्जॉस्टिव इवेंट्स की पछाण की हुंदी है, इन्हां दी पछाण की हैगी है ए यूनीयन बी करो एस दे बराबर होना चाहिए। इन्हां दोवां सैट की यूनीयन करो, ए ते बी की यूनीयन करांगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। जो डाई सुटते हैं आही 6 नंबर आते, सैंपल स्पेस तो आही बनती है।
ਜਦੋਂ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਮ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਮ ਦੇਖੋ 16.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਅ ਡਾਈਜ਼ ਰੋਲਡ ਸੈਟ ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਈ ਸ਼ੋ 4, ਸੈਟ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਆਰ ਈ ਐਂਡ ਐਫ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਹੁਣ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਮਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਾਈ ਮਤਲਬ ਐਮਟੀ ਸੈਟ, ਮਤਲਬ ਫਾਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਡਾਈ ਸ਼ੋਜ਼ 4 ਸੈਟ ਈ ਆ ਗਿਆ 4, ਸੈਟ ਐਫ ਆ ਗਿਆ ਡਾਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 2 4 6, ਡਾਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ, ਜਦੋਂ ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਫਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਸੈਟ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। therefore E and F are not mutually exclusive. E and F are not mutually exclusive. Are not mutually exclusive. ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। A die is thrown. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਫਾਈਂਡ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੈਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਈ ਸੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਥਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 1 2 3 4 5 6, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ। ਸੈਟ ਏ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ। ਸੈਟ ਏ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 7, ਸੈਟ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 7। 7 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 1 2 3 4 5 6 ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਟ ਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 7, ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, 5 ਆ ਜਾਏ। ਸੈਟ ਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3, ਸੈਟ ਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3, 3 ਦੇ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸੈਟ ਡੀ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4, 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 2 3। ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਟ ਈ ਕਿਹਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4, ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕੱਲਾ 6 ਆਏਗਾ। ਸੈਟ ਐਫ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 3, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 3, ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 1 2 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, 3 4 5 6 ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ, ਏ ਦੇ ਬੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋ। ਆ ਏ ਸੈਟ ਆ, ਬੀ ਸੈਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਣੀ 1 2 3 4 5 6। 5 ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਏ ਸੈਟ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 5 6, ਬੀ ਹੈਗਾ 5, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ 5। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, बी सेट 5 है, सी है, यूनियन आ जाएगी 3 6। अगला पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ, ई ते एफ का कॉमन पोर्शन, ई इंटरसेक्शन एफ ਇਹਦਾ कॉमन पोर्शन 6 आंदा पिया। अपने आप रिपीट कर लियो ना। अगला है डी इंटरसेक्शन ई, मैं नंबर लिख लेना पहला, ए माइनस सी है, फिर है डी माइनस ई है, फिर है ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, अगे है एफ कंप्लीमेंट। आ गया डी इंटरसेक्शन ई, डी ते ई दी इंटरसेक्शन, डी ते ई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, डी इंटरसेक्शन ई बनेगा 5। ए माइनस सी, ए विचों सी सैट माइनस कर देना, ए है 1 2 3 4 5 6, सी सैट माइनस कर देना, सी सैट बाहर कर देंगे मतलब 3 ते 6 बाहर चल जाएगा,
सी च 3 6 है 1 2 4 5 बचेगा 1 2 4 5 बचेगा डी माइनस ई डी विचों ई सैट बाहर कर देना 6 बाहर कर देना 6 तो है ही नहीं ना इस मतलब डी माइनस ई आ जाएगा 1 2 3 ई इंटरसैक्शन एफ कॉम्पलीमेंट का मतलब होंगे ई माइनस एफ ई इंटरसैक्शन एफ कॉम्पलीमेंट का मतलब ई है तो एफ नहीं है ई सैट विचों एफ सैट कर देना बाहर ई विचों एफ बाहर कटना जो एफ सारा बाहर सुटांगे 6 भी बाहर चल जाना है क्योंकि सैट ई तो कला 6 ही पिया आ तो बाहर जाने ही जाने हैं 6 भी बाहर चल जाना क्योंकि सैट ई 6 मैच कर दिया मतलब ये आ जाएगा 5 सारा ही बाहर चल गया 5 आ जाएगा एफ कॉम्पलीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस विचों एफ करना माइनस सैंपल स्पेस विचों एफ करना माइनस आ एफ आ इनू सैंपल स्पेस चो माइनस कर दो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 माइनस हो गया 1 2 बचेगा 1 2 बचेगा ये डागा एफ कॉम्पलीमेंट मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन ही थोड़ा लेंथी पर पता लग जाएगा बड़े आराम अगे देखो जरा थर्ड क्वेश्चन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स द रोलिंग ऑफ पेयर ऑफ डाइस recording the number that comes up set A है sum is greater than 8 rolling the pair of dice दो डाइस उठ रहे हैं set A है sum is greater than 8 set B दसो की बनेगा 2 occurs on either die set C है the sum is least 7 and multiple of 3 sum is least 7 and multiple of 3 देखो यार पहला सैट बनाने आप दो डाई सुट रहे आप सम इज ग्रेटर दैन 8 ਇਹਦਾ मतलब दो डाइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ 9 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 11 ਜਾਂ 12 दो डाइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਸਮ 12 ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ डाइस ਤੇ मैक्सिमम 6 आ सकता है दो सुटते पे दो डाई सुटते पे आप ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 8 ਦਾ मतलब ਸਮ ਜਾਂ 9 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 10 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 11 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 12 ਹੋਏਗਾ ਸੈਟ A ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟ A ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਸਮ 9 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 5 ਨਾਲ 5 4 ਨਾਲ 3 6 ਨਾਲ 6 3 ਨਾਲ 7 2 ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਡਾਈਸ 'ਚ 7 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮ 10 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 5 ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 4 ना हो सकता है 4 6 ना हो सकता है सम 11 कितना हो सकता है 6 5 ना 5 6 ना सम 12 कितना हो सकता है 6 6 ना ये आ जाएगा अगे सैट बी देखो जरा सैट बी लिखा है बी occurs on either 2 occurs on either die on either die 2 किसी भी डाई ते आ सकता है मतलब 2 किसी भी डाई ते आ सकता है ਜਾਂ पहली डाई ते ਜਾਂ दूजी ते ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸੈਟ B ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐदा भी बन सकता 1 2 2 2 दोबारा नहीं ला सकते 2 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਣਾ 3 2 ਸੈਟ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 4 2 2 occur on either die ਦਾ मतलब 2 ਕਿਸੇ ਵੀ डाई ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸੈਟ C देखो जरा sum is least 7 and multiple of 3 sum is least 7 and multiple of 3 ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਵੇਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮ ਇਜ਼ 9 ਐਂਡ 12 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸਮ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ 7 मतलब ਦੋਵੇਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਹੋਏ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਦੋਵੇਂ ਡਾਈਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਜਾਂ ਤੇ 9 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 12 ਆਏਗਾ
वैसे तो 3 6 भी आ सकता है, पर उन्होंने कहा घट्टो घट 7 होए या 7 तो वध होए। 7 तो वध सम ਜਾਂ 9 हो सकता है या 12 हो सकता। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल भी तो नाल ही जाना उन्होंने। हुण सम इज 9 एंड 12 वाले केस लिखने आपां। देखो जरा सम इज 9 वाले केस की बनाने हैं। 4 5 5 4 3 6 6 3 ਤੇ ਸਮ ਇਜ਼ 12 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਾ 6 6। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। मतलब A इंटरसेक्शन B कड्डो, B इंटरसेक्शन C ते A इंटरसेक्शन C। वेखो किहड़ा फाई आ रहा, किहड़ा फाई आ रहा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा। हुण A ते B दी वेखो कुछ इंटरसेक्शन हैगी है, A ते B दी इंटरसेक्शन वेखो कुछ हैगा 4 5 5 4। चेक करके वेख लो। मैनूं लगदा A ते B च कुछ कॉमन नहीं हैगा, ए दे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी है 5, बी तो सी वेखो कुछ कॉमन है। आ सैट बी है ना, सैट सी है। बी तो सी च भी कुछ कॉमन नहीं लग रहा मैं, बी तो सी च भी कुछ कॉमन नहीं है। ये भी आ गया 5। ए तो सी च कॉमन वेखो 4 5 आ, इतने 4 5 आ। मतलब ए तो सी च ਜਿਹੜੀ इंटरसेक्शन वो 5 नहीं हैगी। ए ते सी इंटरसेक्शन 5 नहीं हैगी, 5 मतलब खाली सैट। हुण 5 का मतलब जो कुछ कॉमन ना आए तो 5 लिख दईदा है। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने कहा विच अ पेयर ऑफ दिस इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। B and C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। B and C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आएगा। अगे देखो जरा क्वेश्चन 4 देखो जरा। 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 head shows. B denote event 2 head and 1 tail. C denote event 3 tail shows. D denote event head shows on first coin. Which events are mutually exclusive? Simple compound। ये चेक करना पर सिंपल कंपाउंड का दसदा मैं तुहानूं किदां की है। देखो यार मैं वारी वारी से लिखदा वां। हुण क्वेश्चन नंबर 4 च क्वेश्चन नंबर 4 करन लगे आपां। क्वेश्चन नंबर 4 च उन्होंने कहा 3 कॉइन टॉस कीते। 3 coins are tossed। 3 coin toss किए उन्होंने। सेट A 3 head shows, 3 head shows। 3 coin toss किए कहना तिन्ने के तिन्ने हेड आने चाहिए। एच 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 आ जाएगा। 3 coin toss करांगे तिन्ने तिन्ने हेड का मतलब हेड आ जाएगा। सैट बीच कितना दिता है उन्होंने 2 head and 1 tail। 2 head and 1 tail। सैट सी है 3 टेल शोज। सैट डी
head shows on first coin, head shows on first coin किद्दां बनेगा देखो जरा, head shows on first coin, head पहले coin ते होना चाहिए, यानी कि जे पहले तो हेड आ गया दूजे दो जो मर्जी है, पहले दे हेड दूजे दो दे जो मर्जी, यही बनता पे अपने को, पहले दे हेड दूजे तो 2 बारी हेड 2 बारी टेल, हेड टेल या टेल हेड भी आ सकता है। हुण उन्होंने क्या पहला पार्ट है विच ऑफ 3 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव देखो ए इंटरसैक्शन बी कड्डो, बी इंटरसैक्शन सी कड्डो, सारे दी इंटरसैक्शन कड्डो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होंदा है उन्हां दोवां सैट की इंटरसैक्शन 5 आनी चाहिए है, मतलब कुछ नहीं कॉमन आना चाहिए। ए इंटरसैक्शन बी कड्डो, बी इंटरसैक्शन सी कड्डो, ए इंटरसैक्शन सी कड्डो, ए इंटरसैक्शन डी कड्डो, बी इंटरसैक्शन डी कड्डो, सी इंटरसैक्शन डी कड्डो। तो दसो कि इंटरसैक्शन 5 है। ए ते बी च कुछ नहीं कॉमन आता पाया, तुम वेखोगे ना ए ते बी च कुछ नहीं कॉमन आता पाया, 5 आ जाएगी। बी ते सी च वेखोगे उस भी कुछ कॉमन नहीं होता पाया, 5 आ जाएगी। ए इंटरसैक्शन सी, ए ते सी च भी कुछ कॉमन नहीं होता पाया, 5 आ जाएगी। ए ते इंटरसैक्शन डी 5 नहीं आई, इन्हें कॉमन है, इन्हें ट्रिपल एच कॉमन है, देखोगे एच 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 कॉमन आ रहा, नॉट इक्वल टू 5। बी इंटरसैक्शन डी, बी ते डी च भी मतलब कॉमन है, एच एच टी कॉमन है, एच टी एच कॉमन है, मतलब इंटरसैक्शन तो कढ़नी आती है ना तुहानूं, ये कढ़नी आती तुहानूं, ये भी 5 के बराबर नहीं हैगी। सी ते डी च भी कुछ कॉमन नहीं है। उन्होंने कहा केड़ा केड़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगे देखो जरा सैकेंड पार्ट, सैकेंड पार्ट उन्होंने कहा सिंपल, सिंपल इवेंट वो होंदियां जेड़े सैट दे विच इक्को एलीमेंट पिया होए, जेड़े सैट दे विच इक्को एलीमेंट पिया होए। हुण सैट ए च इक एलीमेंट पिया, सैट सी च भी इक्को एलीमेंट पिया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर लिखांगे ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। थर्ड पार्ट है कंपाउंड, कंपाउंड जिस एक तो ज़्यादा एलीमेंट पे होना, जिहदे विच एक तो ज़्यादा एलीमेंट पे होना, बी च एक तो ज़्यादा पे है ना, 3 पे है, डी च भी 4 पे है। लिखेंगे बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ये क्वेश्चन अगे देखो जरा, क्वेश्चन 5th है जिदा 3 coins आर टोस्ट डिस्क्राइब इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये अपने हिसाब नाल जिहड़ियां मर्जी कर सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर च नहीं आता, रहन दो, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, तुसी कुछ सैट एक्सप्लेन कर सकते हो, दूजा बच्चा कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, जिहदी स्पैसीफिक आंसर की ना होए वो पेपर च नहीं आता, रहन दो, ये नहीं लोड करते। क्वेश्चन 6 देखो जरा, 2 dice आर थ्रोन, A and B, A, B, C are follows. A getting even number on first dice, getting odd number on first dice, B है getting sum of number on the dice less than equal to 5। आ 3 सैट बनाने आप, देखो यार सैट A केड़ा बनाना आप,